Hello everyone. Today we are going to learn about the per halo compound. In last class we discussed about the what is monohaloalkane, dihaloalkane, trihaloalkane and polyhaloalkane. In this class we are going to learn about the per halo compound. Per halo compound. What is the means of per halo compound? If in aliphatic hydrocarbon like alkane, all hydrogen atoms are replaced by halogen atom, then these type compounds called per halo compound. For example, we have ethane molecule C2H6. In this molecule, total hydrogen atom 6 replaced by chlorine atom. Then formula C2Cl6 and name of this compound is perchloroethane. Another example, question है बेटा, write the IUPAC name of a परक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन. तो इसको कंप्लीट करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगी. साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन, इट्स ए बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ साइक्लोहेक्सेन. वी नो in cyclohexane total number of carbon 6. Each carbon have only 2 valency are completed. So in this compound remaining 2 valency complete by hydrogen atom. So molecular formula of cyclohexane is C6H12. Now question is perchlorocyclohexane. So total 12 hydrogen replaced by chlorine atom 12Cl. Then formula will form Cl. Total number of Cl in per cyclohexane 12. Now IUPAC name of this compound is 112233445566 because each carbon have 2 chlorine atom. Suppose that it's first carbon, second, third, fourth, fifth and sixth carbon. Each carbon have total 2 Cl atoms are present. So 112233445566. Total number of chlorine 12. So दो डेका शो कर रहा है बेटा किसको, 12 Cl को. ठीक है, दो डेका क्लोरो साइक्लोहेक्सेन. It means IUPAC name of perchlorocyclohexane is 112233445566 dodecachlorocyclohexane. Okay. Now classification of a haloalkane. Classification of haloalkane given by following two type. First is based upon number of halogen atom. एंड सेकंड जो बेस होगा क्लासिफिकेशन का वो होगा बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. तो बेटा इसमें क्लासिफिकेशन जो हेलोएल्कीन का करेंगे हम वो दो टाइप से होता है. पहले टाइप का जो होगा उसमें क्या कहेंगे, बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एंड सेकंड इज क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. हम पहले वाला जो क्लासिफिकेशन है उसको पढ़ भी चुके हैं थोड़ा. तो डेफिनेशन बताऊं मैं आपको इसकी. इफ इन एल्केन मॉलिक्यूल
1 hydrogen atom, 2 hydrogen atom, 3 hydrogen atom, and more than 3 hydrogen atoms are replaced by 1, 2, 3 or more than 3 halogen atom, then these type compounds called respectively mono, di, tri and polyhaloalkane. क्योंकि हमारा जो बेस चल रहा है बेटा वो किसके बेसिंग पे चल रहा है अपना, वो चल रहा है नंबर ऑफ हेलोजन एटम. अगर हेलोएल्कीन के मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ हेलोजन आपको ओनली 1 मिलेगा, इट मीन्स इट्स ए मोनोहेलोएल्केन. Number of halogen atom in haloalkane 2, then dihaloalkane. Number of halogen atom in haloalkane 3, then it's a trihaloalkane, and more than 3 halogen atom means it's called polyhaloalkane. चलिए तो इस एग्जाम्पल को हम करके देखते हैं. Suppose that we have a molecular formula of a N-butane CH3 CH2 CH2 CH3. इट्स N-butane. बेटा यहां पे मैंने N प्रेफिक्स को यूज किया है, इसका रीजन क्या है? N का मीन्स होता है नॉर्मल, और नॉर्मल किन कंपाउंड को हम जनरली बोलते हैं? इफ इन हाइड्रोकार्बन चेन और इफ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, ऑल कार्बन्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट चेन, देन इट्स कॉल्ड नॉर्मल कंपाउंड. ओके, सो हम ये कंपाउंड जो ले रहे हैं, इस कंपाउंड का नेम मैं दे रहा हूं N-butane. ठीक है बेटा, N-butane को हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेस पे क्लासिफाइड करें तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसा बोल रहा हूं, इफ 1 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 1 हेलोजन एटम, देन कंपाउंड विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 CH2X. इन दिस कंपाउंड नंबर ऑफ हेलोजन एटम ओनली 1, सो इट्स कॉल्ड मोनोहेलोएल्केन. क्योंकि हमारा जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो हेलोजन एटम की नंबर के बेस पे चल रहा है, और कंपाउंड में हम देखें तो हेलोजन की नंबर ओनली 1 है. इट्स ए मोनोहेलोएल्केन. नाउ 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 2 हेलोजन एटम, देन कंपाउंड्स विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 CHXX. अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखना इस बात को. डाइहेलोएल्केन है because number of halogen 2. Another compound of dihaloalkane is a CH3 CH2 CHX CH2X. ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हम एक सेम ही कार्बन से दो हाइड्रोजन को रिमूव करें और उन पर हेलोजन को अटैच करें. ऐसा भी तो हो सकता है कि रेगुलर कार्बन पे मैं लगा दूं. थर्ड देखना इसमें फिर CH2X CH2 CH2 CH2X. ये कंडीशन अलग क्रिएट कर दी मैंने. फर्स्ट और लास्ट कार्बन पे हेलोजन है, नंबर हेलोजन के 2 ही है, बट इसमें देखो डिफरेंस किस बात का आ रहा है. हेलोजन फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन पे, हेलोजन रेगुलर कार्बन पे है, हेलोजन सेम कार्बन पे. एक कंडीशन और क्रिएट हो सकती है इसमें बेटा, उसका नेम हम डालेंगे CH3 CHX CH2 CH2X. ये सब कंडीशन से डिफरेंट बना दी है मैंने यहाँ पे. अब इन चारों की डेफिनेशन बड़े ही इत्मीनान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों की चारों. डाइहेलोएल्केन का मीन्स तो हमें पता है. इफ इन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक एल्केन 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 2 हेलोजन एटम, देन इट्स कॉल्ड डाइहेलोएल्केन. बट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग को समझना. अब आप फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसका मैं नेमिंग दे रहा हूं जेमिनल डाइहेलाइट. सेकेंड वाली को मैं बोल के चल रहा हूं यहां पे विस्नल डाइहेलाइट. थर्ड वाली कंडीशन का नेम डाल रहा हूं अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड, और फोर्थ जो कंडीशन है उसको सबसे सेपरेट ही कर दिया अदर डाइहेलाइड. जेमिनल का मीन्स क्या होगा यहां से, इफ इन डाइहेलोएल्केन मॉलिक्यूल, इफ इन डाइहेलोएल्केन मॉलिक्यूल 2 हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन. डाइहेलोएल्केन मॉलिक्यूल है हमारे पास में ये. इफ इन डाइहेलोएल्केन मॉलिक्यूल 2 halogen atoms are present on same carbon, then condition called geminal dihalide. In second, if 2 halogen atom are present on 2 regular carbon, then it's called vicinal dihalide. Another condition, if in dihaloalkane molecule 2 halogen atoms are present on first and last carbon, then it's called alpha omega dihalide. Okay,
except geminal, vicinal and alpha omega dihalide, other dihalide are called other dihaloalkane molecule. ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में इस क्लासिफिकेशन में सेकंड वाला बेस लेंगे हम, जिसका पता है आपको कौन सा है, बेस्ड अपॉन हाइब्रिडाइजेशन. ओके बेटा, थैंक यू.